أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. جی قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا درس تھا. میرا ایک سوال ہے، جس طرح اب شیطان نے تو مطلب اللہ سے اس نے وعدہ یہی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ آیا کہ شیطان جو ہے وہ جس طرح جن ہیں جو ہمارے درمیان رہ رہے ہیں اور شاید انسانی روپ میں بھی رہ رہے ہیں، تو اس طرح شیطان انسانی روپ میں بھی سامنے آ سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ہستی مطلب لامحدود ہے، وہ یہ کہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو اسی طرح مطلب شیطان بھی مطلب اب جس طرح اپنے بندوں کو بہکا رہا ہے، ایک ٹائم پہ یہاں پہ بہکا رہا ہے، پاکستان میں بہکا رہا ہے، جس طرح وہ بھی مطلب یہ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ بھی مطلب ہر جگہ موجود ہو اور بندوں کو بہکا رہا ہو؟ تو اس کے کس طرح روپ، اس کے کس طرح مطلب تھوڑا سا جی ایکسپلین کر بڑا دیں. اچھا سوال کیا آپ نے. شیطان انسانوں کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اس کی پہچان جو ہے وہ اللہ کے خاص اور نیک بندے ہی کر سکتے ہیں. صحیح عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی پہچان کر سکے. اور ہوا بھی اس طرح. حضرت حاجرہ کے سامنے آیا ہے، حضرت اسماعیل کے سامنے آیا، حضرت ابراہیم کے سامنے آیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے آیا اور اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. اور یہ بھی ہے کہ شیطان کو خدا نے قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکا سکتا ہے اور ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. صحیح، کیونکہ اگر خدا اس کو طاقت نہ دیتا نا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا، آزادی عمل نہ ہوتی، انسان خود مختار نہ ہوتا، اور انسان کا پھر امتحان اور اس کے درجات ہیں وہ اس کو حاصل نہ ہوتے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر پیدا نہ کرتا تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہ ہوتی، رکاوٹ ہی نہ ہوتی نیک اعمال میں. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو خدا کے نیک بندوں کا پتہ نہ چلتا کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے، کون پارسا ہے، کون پرہیزگار ہے، کون شیطانی صفت ہے اور کون شیطان کو فالو کر رہا ہے. یعنی یہ امتحان کا خدا نے ایک ذریعہ بنایا، انسان کی ترقی کے لیے ذریعہ بنایا. جی ماشاءاللہ، جی بہت جس طرح ماشاءاللہ ہوتا ہے نا، مدلل. جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لینے کے لیے یہاں پر ناروے میں وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کے، جی سینسور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سینسور آپشیورنگ جو ہوتا ہے، جی سینسور ہوتا ہے سینسور جی، جو ہوتا ہے آپ کو روڈ پر نکالتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے کیوں روڈ پہ نکالتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے اس سختی، اس ٹریفک میں، اس اتار چڑھاؤ میں کیسے آپ نکلتے ہیں. آیا وہاں پر آپ ڈرائیونگ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ورنہ یہ ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے کہ ہم آپ کو یہیں پر جو ہے آسان سے روڈ پر وہ 2 چکر لگوائے اور آپ کو پاکستان کی طرف دے دے ہو 2 کھڑی کر کے ڈنڈے سے، جی بس ڈرائیونگ لائسنس دے دے آپ. جی جزاک جی اللہ. ابرار شاہ صاحب نے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا. یہ موسم میں پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. میرے کچھ جاننے والے ہیں ادھر نارویجن کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی یہ اچھا بتایا آپ نے سوال کیا ہے. عراق میں ایک قوم ہے جو شیطان کی پوجا کرتی ہے، شیطان کو فالو کرتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی شیطان کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شیطان جو ہے نا بڑا ڈڈ ہے، اس سے دشمنی کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوستی کرو. ٹھیک ہے، ورنہ شیطان سے اگر آپ مخالفت کریں گے تو ایران والا حال ہو جائے گا. بہتر ہے کہ سعودی عرب کی طرح اس کے ساتھ دوستی کر لو. تو یہ آسان طریقہ نہیں، ایسا نہیں ہے. شیطان کی پوجا کرنا سب سے بدترین جو ہے وہ انسان کی گراوٹ ہے، انسان کا گرنا ہے. شیطان سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ تیری پوجا کرتے ہیں، اس نے کہا سارے ہی کرتے ہیں، کچھ دلیر ہیں کھل کر کہتے ہیں، دوسرے کھل کر کہتے نہیں ہیں. کرتے سارے ہی پوجا اس کی. یہ لوگ دوسرے کو جو قتل کرتے ہیں، یہ لوگ دوسروں پر جو حملہ کرتے ہیں، فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ جی شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کو بھی فالو کر رہے ہیں. لیکن جو عراق میں لوگ ہیں جو شیطان پرست، وہ تھوڑے دلیر ہیں، کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پوجا کر رہے ہیں. اور سب ان کا جو حلیہ ہے وہ بھی اسپیشل قسم کا ہوتا ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں.
काला लिबास पहनते हैं और अजीब अजीब उनकी शक्लें होती हैं। ये ये मैंने नहीं सुना, लिबास खास पहनते हैं। ज़ाहिर है, नहीं नहीं काला किस्म का वो लिबास वगैरह पहनते हैं। वो शायद तो डराने के लिए करते हुए हैं। मैं जब सैर तफरीह के लिए बाहर जाता हूँ ना, जंगल की सैर करने, तो मैं तो कुछ दिन पहले ना दरख्तों पे उन्होंने बांधे हुए थे तवीज और धागे और पता नहीं क्या क्या चीजें, स्वाट मागी ये वो। जी तो जी। मैं पहले समझा कि पता नहीं ये शैतान के पूजा करने वाले लोग इधर आए हैं और वो कर रहे थे इधर। तो बाद में पता चला ये तो कोई स्वाट मागी करने वाले लोग हैं, जादू करने वाले। तो मैं तो डर गया। वो भी इन्हीं प्रोसेस से गुजरते हैं और वो जादू करते हैं ना, काला जादू करते हैं। वो भी इन्हीं प्रोसेस से शैतानी अमल करते हैं, और फिर वो उस उनको इख्तियार हासिल होता है कि वो ऐसा काम कर सकें। जी, शैतान की पूजा ये मैंने नहीं सुना था कि काला लिबास पहनते हैं ना। कि ये वैसे फिल्म वगैरह में देखा है, जो लोग शैतान के रूप में आते हैं तो उन्होंने काला लिबास पहना होता है, अजीब सी शक्ल बनाई होती है, ऐसा डरावना सा जो है वो चेहरा बनाया होता है, मास्क चढ़ाया होता है चेहरे पर, डरावना सा। फिल्म में देखा था, लेकिन इस तरह मैंने नहीं सुना कि उनका कोई नहीं नहीं, मास्क। वो सब उन्होंने अपना अकीदा जो बनाया हुआ है इस हवाले से। तो उनका है, मेरे कुछ जानने वाले हैं इधर ना। अच्छा तो अच्छा, लेकिन मुमकिन हो कि जी जी, ये इसके बारे में। शुक्रिया मोहन साहब। ये खुदा आपको सलामत रखे। ये आसम ने हाथ खड़ा किए। जी मुझसे पहले किसी और का भी शायद सवाल है। तीनों वो अबरार हो साहब गया, से। वो हो गया। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा दरस था माशाल्लाह। आपने चीज़ों के माफ़ करने की भी बात बताई आपने। जो है अच्छाई अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने की तरफ भी बताया, और बुराई का शैतान की तरफ मंसूब करने की भी बताया, ताकि इंसान अपने ऊपर से चीज़ निकाल के वो मंसूब कर सके, अच्छा कर सके। मुझे मुनाफिकीन के बारे में थोड़ा सा इस हवाले से पूछना था कि ये मुनाफिकीन जो, मतलब जो मुझे लगता है, मेरी समझ के मुताबिक जो शिया अकीदा है, कि हमें जो मुनाफिकीन थे हम उनको इस तरह माफ़ नहीं करते, चाहे वो माफ़ी मांग भी लें। ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो यजीद के सारे आबा व अजदाद हैं, खास तौर से उनको वो देख लीजिए, हम उनको माफ़ नहीं करते। हम अपने दिल में चीज़ रखते हैं कि नहीं ये लोग ऐसे, तो इस वजह से क्योंकि ये इनकी दुश्मनी थी। तो आज के दर्स की मुनासिबत से तो ये ऐसा हुआ कि हमने कीना रखा हुआ है और इनको माफ़ नहीं किया। तो आपका ये दर्स के मुताबिक अगर ये माफ़ करना है, भूल जाना है सब कुछ के छोड़ दो, तो फिर तो हम फिर थोड़े से गलती में हुए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब ये देखना है ना, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, हमने उनको माफ़ करना है। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, वो खुदावंद ताला का मामला है। जो आले बैत का मामला है, जो अहादीस उसके बारे में रोशन वाज़ेह है कि उनको माफ़ी नहीं है। ठीक है, उनको माफ़ी नहीं है, उनके लिए बख्शिश नहीं है। तो ये वो हमने उसको नहीं फैसला करना कि हमने उसको माफ़ करना नहीं, हमने आले बैत को इस सिलसिले में फॉलो करना है। हम जो माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, आम दुनिया के मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, बर्ताव के हैं। किसी से कोई चीज़ छीन ली है, किसी ने किसी से कुछ ज्यादती कर दी है, किसी की गीबत कर दी है, किसी पर तोहमत लगा दी है, ठीक है, या किसी की जगह उसने गस्ब कर दी है, या जो है किसी के साथ बेअदबी की है, उसने बदसलूकी की है, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जो मुनाफिक की बात है, सदर इस्लाम के जो मुनाफिक हैं, ये जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया है, हमने क्या करना है? उनसे दुश्मनी करनी है। अब उनका माफ़ी हो या ना हो, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में है, वो काम हमारा नहीं है। और वो पंचतन पाक का आया उनको माफ़ करते हैं नहीं करते, क्या है वो उनका सिलसिला है। हमने अहले बैत की सीरत से ये देखा है कि उनकी माफ़ी नहीं हुई और नहीं होगी, और उनकी मजम्मत होनी चाहिए, उन पर लान तान होना चाहिए। ठीक, बहुत खूब। अच्छा, और एक चीज़ की मैं और वजाहत भी करना चाहूँगा कि मतलब मेरे मेरे मुताले से गुजरी थी कि जो काला जादू है, ये तो मतलब हर कौम में, हर उसमें है भी ज़्यादा। और मतलब एक जो हारूत और मारूत के बारे में बात हुई थी कि उन्होंने फरिश्तों ने सिखाया भी था कबाला के नाम से, और उसमें यहूदियत के अंदर है भी ये चीज़ काफ़ी वहाँ से। तो जो करता है ये तो उसके इसके जो खास करने के तरीके हैं वो एक जैसे हैं। दूसरी बात है कि जो अबरार भाई कह रहे हैं कि वो काले कपड़े लिबास पहनते हैं, वो हो सकता है शैतान पर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक और लोग भी होते हैं जो गॉथ्स कहलाते हैं। मतलब वो अपना रूप ऐसा धारते हैं और इस तरह करते हैं, लेकिन वो खुदा न खास्ता शैतान परस्त वो लोग नहीं है। वो लोग सिर्फ असल में दुनिया से बेजार हुए हुए होते हैं, कि वो कहते हैं बस हमें अपना छोड़ दो, अपना रूप धारा हुआ है कि हमें बस तंग ना करो।
तो शैतान परस्त बेशक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गॉथ्स होते हैं जो कि अपना रूप ऐसे धार लेते हैं, लेकिन वो खुदा ना खासा शैतान परस्त नहीं है वो वाले। तो हो सकता है ये चीज़ मैंने चाहा था कि मैं कह दूँ। ये दुनिया में तरह तरह के फिरके हैं, तरह तरह के मज़ाहिब हैं, तरह तरह के लोग के अपने माइंड सेट हैं, और इसमें हो सकता है कई तरह के लोग हों, मुमकिन है उनका सेम जो है वो लिबास हो लेकिन अकीदे मुख्तलिफ हों, या कुछ एक आदमी अकीदे की बुनियाद पर एक लिबास पहन रहा है, एक आदमी वैसे शौक की बुनियाद पर पहन रहा है, और एक आदमी किसी को डराने के लिए पहन रहा है। ये मुख्तलिफ हो सकती है, इस हवाले से ज़ाहिरी शबात कई चीज़ों में हो सकती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड पर जो चीज़ है, अकीदा है, ये चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये नेचुरल चीज़ है दुनिया में। जज़ाकल्लाह। जी और कोई सवाल है? जी मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अलीम या अलीम या गफूर या रहम। खुदा इस कलील से इबादत को कबूल व मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता। या अल्लाह तू गफूर रही, हाज़रीन की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, औलाद को नेक और सालिह बना, मरहूमी की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह तू गफूर रही, रहम करने वाले, करम करने, इस वक्त मुश्किल वक्त में ईरान की मदद फरमा। या अल्लाह जो लोग उसकी मदद, जो मुल्क के लोग उसकी मदद करें, उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह तू गफूर रही है, इसराइल को नेस्त नाबूद फरमा, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। या खुदा दुनिया में जहाँ कहीं में मजलूम रहते हैं उनकी मदद फरमा, ज़ालिम खुदा नेस्त नाबूद फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आखिर में अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास से वस्सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ठीक है जी, नेक्स्ट जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद ठीक है जी, रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट को आखिरी सेशन होगा तो उसमें हम क्विज रखेंगे इस गदीर से मुतल्लक, इंशाल्लाह, गदीर और मोबाइल से मुतल्लक इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। मौसा पूछना था कि ये जो तौहीद मस्जिद वालों का कोई कैंप है, इनमें क्या किस किस्म की एक्टिविटीज हैं इनकी? जी वहाँ कैंप जो तौहीद वाले पर मुनाकिद करते हैं, वहाँ ये होता है, दर्स वगैरह भी होती हैं, क्लासें भी होती हैं, साथ गेमें होती हैं, आउटिंग होती है, चीज़ें होती हैं, अच्छा होता है सिस्टम। इस तो बार मैं जाऊंगा तौहीद कैंप में, तो मैं आपको कैंप के बाद बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था। जी जी हाँ, आज से मुझे ना आप स्नैप पे भी भेजते रहना, और वैसे भी वीडियोस वगैरह बना के भेजना। जी जी, अच्छा सिस्टम होता है उनका, अच्छा प्रोग्राम। जी ठीक है जी, अच्छा जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।